Good afternoon, ma'am. A very good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. सेल्फ स्टडी भी चल रही है ना साथ साथ में? हाँ मैम। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो? लेक्चर के अकॉर्डिंग घर पे पढ़ते हो? हाँ मैम, लिखते हैं नोट्स एंड पढ़ते भी हैं, रिफर करते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि क्लास में है तो आप हमेशा एक नोटपैड और पेन लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि सारी चीजें हम आप लोगों को पीपीटी में नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स वो आप नोट डाउन करते रहा करिए। ओके, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, फॉर ऑल द क्लासेस। तो वो आपको फिर इजी रहेगा रेफर करने के लिए। We will wait for 2 minutes more and after that I will start. Okay. जी मैम। Those who can switch on their cameras, please switch on it. तो एटलीस्ट एक बार मैं आप लोगों को फेस टू फेस देख तो सकें। दोज हु डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास, तो यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, विशाल, मिथिल। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है बीएड ज्वाइन करके? हाँ मैम, स्टडीज बहुत आप कुछ लोगों लर्न करने को मिल रहा है। हाँ, अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, आप लोग बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे पूरे 2 इयर्स में। It's 1:45 now. We are going to start a class.
So हमने डे बिफोर yesterday हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? You studied about? Yes, ICT. ICT. So I think now the concept of ICT, how you can define ICT, what do you mean by information technology, what do you mean by communication technology, so that things are clear to you people. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. अगर अभी आपको कहे कि Yes, you ma'am. can define what do you mean by ICT, what do you mean by information technology, what do you mean by communication technology, and how these two technologies work together to as a ICT. So you people can define, and you can also define some general advantages of using ICT and advantages of using ICT in education also. Yes? Yes, student? These Yes, ma'am. part we have already covered, है ना? ये सब चीज हम already cover कर चुके हैं. तो आज मुझे कौन define करेगा? Let's start with this only कि how you will define ICT. May I, ma'am? Yes, you just tell your name and then you can give answer. Okay? Preeti Ma'am. Sharma want to give? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, it is Preeti. computer-based management technology of information or data. Yes. और कोई? Information technology is what? How you will define information technology? And why we use information technology? Yes. Because today we have to start the new subtopic of this unit. So before going to that topic, we will discuss all these topics in short. So how you will define information technology? Information technology, you know now what is the full form of ICT? It is, what is the full form of Information ICT? communication technology. Information communication technology. Yes. So जो हमारा ICT है, that is we can say information technology plus communication technology. So how you will define information technology? That means the technology which we are using to process the data. हम डेटा को प्रोसेस करके we make it information, we save that information, isn't it? We manage our information, after that we process it and then we save it and then we present it. तो इन सब टेक्नोलॉजीज के लिए what we use information technology. Electronic And equipment. yes, and then after that, that processed data, that processed information, when we have to pass. So for that means when we have to transfer that information, then we use communication technology. As I have already discussed with you people, that communication technology में आपका सब कुछ आएगा, आपका message send करने के लिए whatever devices you are using, like internet, computer, television, mobile, everything that will comes under this. Okay, so ICT is a very wider term. Okay, now today we have discussed about communication technology. उसमें मैं आपको I want to tell you two things about that. कि in communication technology we have two types of communication. First one is your synchronous communication and second is your asynchronous communication. Anybody of you, anyone? Can you tell me what do you mean by synchronous and asynchronous communication? You know the difference between synchronous communication and asynchronous communication? Yes. Hello, ma'am. Yes, Shivangi. Ma'am, ma'am, the example of synchronous communication would be instant messaging like WhatsApp or any form of messenger. And asynchronous communication is when the interaction is not happening in the moment or live. So asynchronous communication, a simple example would be a blog that one writes, or Good. Very yes, good, Shivangi. I can give you one example of synchronous communication. Now, what we two are doing, Shivangi, what we two are doing right now, synchronous or asynchronous? Yes. So that is the simple. हम अपने अगर जो हमने example से अगर हम उसको daily life से relate करें तो it will be very easy for you people. उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? अभी मैं आप लोगों से online teaching में कौन सा communication use कर रही हूँ? Which type of communication I am using right now? I am using
सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस के लिए क्या होता है कि हम दोनों को एक ही टाइम में प्रेजेंट होना इज नेसेसरी। यस, अभी हम दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो सिंक्रोनस के लिए सेम टाइम में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं दैट कम्स अंडर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे हम चैटिंग बोलते हैं कि हम चैट करेंगे इतने बजे, यू जस्ट प्रेजेंट देयर, है ना, तो हम चैटिंग करते हैं, उसके लिए भी क्या होता है, हमारा सेम टाइम में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। कम्युनिकेशन में हम वी यूज द वर्ड सेंडर एंड रिसीवर, है ना। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम वर्किंग एज अ सेंडर, है ना, और आप जो नॉलेज रिसीव कर रहे हो यू कम्स अंडर रिसीवर। तो उसका एक ही टाइम में प्रेजेंट होना इज important, so that comes under synchronous communication. All of you got my point, students? Yes, ma'am. है ना, तो synchronous में दोनों का सेम टाइम में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जैसे अभी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर व्हाट, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मैं आपसे जो अभी कम्युनिकेशन कर रही हूँ दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। बट सपोज मैंने आपको किया, आपका जो ये मैटर है प्रेजेंटेशन मैटर, अगर मैं इसको आपको मेल कर दूं और मैं बोलूं ठीक है नाउ यू कैन रीड इट व्हेनेवर यू आर फ्री, व्हेनेवर यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल कम अंडर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मैं आपको कुछ मेल कर रही हूँ, तो मैं जब मेल कर रही हूँ तो आपका उस टाइम में प्रेजेंट होना इट्स नॉट नेसेसरी। आपको जब टाइम मिले एट दैट टाइम यू कैन रीड इट। लाइक जैसे आप ग्रुप चैटिंग व्हाट्सएप मैसेज करते हो, आप मैसेज करके छोड़ देते हो, ठीक है, सो दैट कम्स अंडर व्हाट, वो भी कम्युनिकेशन ही तो है, बट दैट कम्स अंडर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we will start our presentation work. I think how many of you have joined? आपकी क्लास में कोई ऐसा है कि वो ज्वाइन नहीं हुआ है एक भी बार कोई भी क्लास में? You know कि ऐसा कोई स्टूडेंट है? No? No, ma'am. ऐसा तो किसी ने अभी तक बोला नहीं। वही मैं I think ऐसा है नहीं। अगर होता तो ऐसा है बताते नहीं। सब। हाँ, मतलब अगर होता तो डिस्कशन तो जरूर होता, तो इसलिए मैं एक बार कंफर्म करना चाह रही थी। वैसे तो आई हैव द अटेंडेंस लिस्ट। Okay, now let me share my PPT with you. All of you can see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this we have done right now. What about synchronous communication and asynchronous communication? So the word synchronous means working together at the same time. This is the keyword for this definition. Got it? समझ में आया आप सबको? Student, I am not getting any reply because now I have some network issue also. So if you will not reply now, then I will think whether you are with me or not. Okay. So synchronous communication में what is the keyword for this definition? That working together at the same time. जैसे मैंने भी आपको example दिया, हम लोग जो online टीचिंग कर रहे हैं, चैट रूम है, एंड यू हैव सीन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस आल्सो। आप देखते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस होती है ऑनलाइन, न्यूज देखते हैं, डिफरेंट सिटीज से सब लोग एक साथ बैठ के चैनल्स में डिस्कशन करते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. है ना, एक टॉपिक होता है उसमें सब लोग डिस्कशन करते हैं न्यूज चैनल्स में, तो दैट आल्सो कम्स अंडर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। Next one is asynchronous communication. As I've already given you example and two more example, you can see it here, like your discussion forum. हम forum में कुछ message डाल के आपके पास दे देते हैं message, ठीक है, तो आप अपने time के according उसको पढ़ के we give you assignments also,
ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आते हैं? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर। सो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का फायदा भी है, एज यू नो दैट वी हैव प्लस एंड माइनस ऑफ एवरी टर्म। हर चीज के, हर टेक्नोलॉजीज के हमारे पास प्लस भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, एंड वी हैव नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करें, अगर मैंने आपको अभी किसी टॉपिक पे बोला कि ओके वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, तो मे बी अभी डिस्कशन के सामने आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, बट इंस्टेंटली वो आप उसको डिस्कस नहीं कर पाए, उसमें आप सोच नहीं पाए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आपका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जो आपका टॉपिक है उसको थॉट फॉर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेन मोटो अबाउट दिस इज यू शुड नो द टर्म कि what is the difference between synchronous and asynchronous, because day before yesterday we have done about communication technology, है ना, तो इसलिए उसमें ये दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए। So I think now the difference is clear to all students. Yes, ma'am. Okay, now we will move forward. These Yes, things ma'am. we have done. Concept we have done, definition we have done, ICT we have done, importance in education and general importance we have done. Now the next topic is evolution of ICT. अभी आपको एक चीज पता है कि पहले जब हम फोन यूज करते थे तो हमारे पास कैसे फोन आते थे? हम व्हाट्सएप पहले यूज कर लेते थे। हमारे जो पहले सबसे पहले फोन आते थे तो उसमें हमारे पास ये मैसेजिंग मल्टीमीडिया फैसिलिटी अवेलेबल थी? आपने कुछ देखा होगा आपके नहीं ना। तो किसी भी चीज को इन्वेंट होने के लिए थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग टाइम लगता है। यस, तो आईसीटी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में तैयार होकर आ गया, ठीक है। तो आईसीटी का भी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है कि उसका डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ओके, अगर हम बात करें, यस, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? Students? Okay. So now if we will talk about evolution of ICT, तो इसका भी एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है। अगर हम we are talking ICT in terms of education, ठीक है। ICT का क्या यूज है एजुकेशन में, we are talking about that, because ICT का तो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करें, अभी आईसीटी भी छोड़ो, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एंशिएंट टाइम में हमारा एजुकेशन कैसा होता था? कौन बताएगा? एंशिएंट टाइम में हम लोग एजुकेशन कैसे लेते थे? यस, गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम होता था ना, कि हमें गुरु के पास, वेरी गुड, हमें क्या करना पड़ता था? गुरु के पास, मतलब जो एंशिएंट टाइम में लोग कैसे जाते थे? गुरु के पास जाते थे और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे, और गुरु हमें कोई रिटर्न फॉर्म नहीं देता था। तब जो एजुकेशन का जो था वो वर्बली था, ओरल होता था, है ना, रिटर्न नहीं होता था। फिर लेकिन उसमें क्या था? एजुकेशन लिमिटेड हो गई थी कि किसी, मतलब हम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो लिमिटेड होते थे, उतने ही लोगों को एजुकेशन दे पाते थे। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ धीरे धीरे, जब पेन, पेपर, इंक, इन सब का इन्वेंशन हुआ, तो जो हमारी वर्बल एजुकेशन थी वो रिटर्न फॉर्म में हो गई, है ना। रिटर्न फॉर्म में होने से फिर जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो जो हमारी एजुकेशन है उसका एरिया थोड़ा और बढ़ गया। यस, यस मैम। तो फिर इस तरह से फिर करते हुए हमारी प्रिंटिंग मशीन आई, फिर हमारा टेलीग्राम आया, फिर टेलीफोन इन्वेंट हुआ, फिर रेडियो इन्वेंट हुआ। और हम कहते हैं ना, रेडियो ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया एजुकेशन को, मास एजुकेशन के लिए, ठीक है। रेडियो में क्या है? बहुत सारे देयर आर नंबर ऑफ एजुकेशनल चैनल्स ब्रॉडकास्ट होने लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लिमिटेशन था कि हम सिर्फ उसको सुन सकते थे। आफ्टर दैट रेडियो हमारे पास टेलीविजन आया। टेलीविजन ने हम जो चीजें सुनते थे, नाउ वी कैन सी इट, हम देख सकते हैं उसको। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, आफ्टर दैट नंबर ऑफ मशीन्स जो है वो डेवलप हुई, और फिर उसके बाद नियर अबाउट यू कैन से कि 1936 के आसपास हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ। और आपका जो सेकेंड यूनिट है इन दिस पेपर, दैट इज अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आप पढ़ोगे कि कंप्यूटर पहले कैसे इन्वेंट हुआ, फर्स्ट कंप्यूटर कैसा था। आपको पता है हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ था उसका साइज क्या था?
रूम जितना। मैम रूम एक उनको रूम सुपर बड़ा के कॉम्प्लेक्स बराबर, कहते थे। पता है, एक रूम के बराबर। नाउ यू कैन इमेजिन कि आजकल तो हमारे पास ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर है कि हम अपने पर्स में रख के उसको चल सकते हैं। यस, तो जब हमारा पहला कंप्यूटर बना तो वो इतना। यस, हु वांट टू डिस्कस? यस, प्लीज टेल योर नेम। यस यस, nobody want to say hello? No, ma'am. No, no. कंटिन्यू मैम। ओके, नो मैम। तो बेटा मैं आपसे आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था उसका साइज हमारे रूम के बराबर था। ठीक है, और मतलब इतना बड़ा था। फिर हमने कहा ना कि टेक्नोलॉजीज में क्या होता है हमारा, हम आज पहले हम 2G पे वर्क करते थे, फिर हमारे पास 3G आया, 4G आया, तो इन्वेंशन तो होता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा ICT है उसमें भी काफी सारा स्टेज वाइज, स्टेप वाइज काफी सारा इन्वेंशन हुआ। तो ये आपको मैंने एक जनरल बेसिक बताया है कि कैसे ICT का इवोल्यूशन हुआ। मैंने 2-3 वीडियो देखे थे यूट्यूब में, वो बहुत अच्छे लगे। तो यू विल गेट टू नो कि हमारे पास कौन कौन सी मशीन्स किस किस टाइम पे इन्वेंट हुई, इसका नेम क्या है। तो मैंने उसका ना आपको लिंक शेयर किया अपनी PPT में। आई विल फॉरवर्ड दिस PPT टू यू। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब को देखिएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट? Okay, तो ma'am. यू विल गेट टू नो। ऐसा कि आपका ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि यू हैव टू लर्न ऑल दैट नेम। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये 2 लिंक शेयर किए कि यू विल गेट टू नो कि पहला कैसा था, फिर उसके बाद कौन सा हमारे पास इन्वेंट हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा सीरीज में है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दीज 2 वीडियोस। सो व्हेन आई विल शेयर दिस PPT विथ यू ना, तो यू जस्ट गो थ्रू दीज 2 लिंक्स। ओके, तो आप देखेंगे, आपको भी पता चलेगा, आपकी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी कि हाँ ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे मशीन डेवलप हुई। ओके, गॉट माय पॉइंट? जी मैम. Yes, ma'am. Now we will Yes, move ma'am. to next. Now the next term is educational technology. अगर आप अपने सिलेबस में जाएंगे तो हम लोगों ने what is ICT, what is information technology, what is communication technology, that we have done. उसमें एक चीज, एक और टॉपिक है ET. What is the short form of educational technology? It is ET. ET stand for educational technology. ठीक है, अब आप देखिए जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये किस 2 वर्ड से मिलके बना है? यू कैन सी इट इन PPT ऑल्सो एंड यू कैन गिव द आंसर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन से 2 वर्ड्स को मिलके बना है? एजुकेशन प्लस Educational plus technology. टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशन का तो आपको मतलब पता ही है कि जब हम व्हाट वी ट्राई टू डू इन एजुकेशन, वी ट्राई टू लीड आउट ऑल द इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज फ्रॉम द प्यूपल। ठीक है, यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी पोटेंशियलिटी है, वो हम उसका निकालें। और टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम इस चीज को, इस एम को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, दैट कम्स अंडर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? यस मैम। यस अभी मैं आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ वाइडर टर्म, मैं अभी आपको एक एक करके इसका मतलब और इसके क्या पार्ट्स होते हैं वो समझाऊंगी। ठीक है, सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो हाउ यू विल डिफाइन कि इट कैन बी डिफाइन एज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर मैं इसको एक लेमन की भाषा में आपको समझाना चाहूँ ना, तो आप ये समझो कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कोई भी फील्ड से आई हुई टेक्नोलॉजी। हमें ये नहीं मतलब है कि ये फिजिकल साइंस से आई है, ये किसी और फील्ड से आई है। हम कोई भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन का, इफ यू वांट टू अचीव द एम ऑफ द एजुकेशन, हमें अपना एजुकेशनल का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट कम्स अंडर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन की फील्ड में यूज कर रहे हैं कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सो दैट इज व्हाट? दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. to achieve the objective of education,
ठीक है, हमें हमारा मेन मोटो क्या है कि हम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर डूइंग दिस व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग दैट इज नोन एज व्हाट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग ने ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह निकाले, हमने वहां उस फील्ड से उठा लिया और हम अपने एजुकेशन में उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए वी पीपल आर यूजिंग इट। यस, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. और वैसे ही अगर हम ब्लैक बोर्ड का कॉन्सेप्ट देखें तो जो ब्लैक बोर्ड है ना वो मिलिट्री प्लान के लिए डेवलप हुआ था, फिर हमने उधर से उठा के उसको अपने एजुकेशन में यूज कर लिया। तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपने एजुकेशन में, अपने एजुकेशन के एम को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दैट इज सिंपल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मैनेजमेंट की फील्ड हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी की फील्ड हो, इकोनॉमिक की फील्ड हो, हम सारे फील्ड के जो कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह यूज करके अपने जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं ना, दैट comes under educational technology. So I think it's clear to all. कुछ basic concept clear हुआ? What do you mean by educational technology? Yes, ma'am. हाँ मैम। Okay, beta. So this is the definition given by G.O.M. Lith. Educational technology is the application of scientific knowledge about learning and the condition of learning to improve the effectiveness and efficiency of teaching and learning. हम टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करते हैं? हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो क्या होता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, these are the definition of 2-3 different authors, but the meaning is again same. Here it is written the application of modern skills and technique. हम modern skills और techniques को education training में use कर रहे हैं. That is what? That is educational technology. Now come to the concept. जैसे हमने ICT के concept की बात की थी, अब हम concept of educational technology की बात करेंगे। तो जो हमारा educational technology है, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स, और यू कैन से 3 पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम नाम देते हैं ET1, ET2 एंड ET3। गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? हाउ यू विल डिनोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? ET। ठीक है, तो ET मीन्स व्हाट? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट? ET1, ET2 and ET3. Now I will tell you in detail ki what do you mean by ET1, ET2 and ET3. So here it is, I have written ki concept of educational technology, technology in education and technology of education. Can you read it? Yes, ma'am. पढ़ सकते हैं बेटा? तो can anyone of you, anybody can tell me कि what is the difference in technology in education and technology of education? Yes. Then we will go ahead. अरे बेटा नहीं आता तो से नो मैम, बट प्लीज डोंट सिट क्वाइटली लाइक दिस ना। इफ यू, आई नो कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू पीपल ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट से कि नो मैम या यस मैम, इट्स ओके, बट एटलीस्ट प्लीज रिस्पॉन्स, है ना? तो देन आई विल गेट टू नो कि ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट। मैम टेक्नोलॉजी अगर रॉन्ग भी होगा तो इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड ना, वो मैटर करता है। Yes, ma'am. Technology in education, I think, is the technology that we are using in education, and technology of education is that technology which are related, which kind of which are of education. No. Ma'am, I will try with example. Like in science textbook, we have CDs after the in last page, so that can be an example of technology in education. That CD we use for knowing the experiments. We have and technology of education.
That I don't know. ओके नहीं, योर आंसर इज नॉट, अगर ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा करेक्ट है, बट आप पॉइंट पे अभी पूरा पॉइंट पे नहीं हो, ठीक है? तो आई विल टेल यू द डिफरेंस। देखिए, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ये हमारा ET1 कहलाता है, ठीक है? एंड इट इंक्लूड्स ऑल द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। जो भी हम हार्डवेयर फिजिकल सेंस में जो हम यूज करते हैं ना, दैट कम्स अंडर टेक्नोलॉजी in education. In technology of education means we are talking about all the software parts. हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर अगर अभी Yes, हम ma'am. बात करें तो आपका लैपटॉप, आपका फोन क्या है? दिस इज योर हार्डवेयर। लेकिन अभी मैं आपको मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन किससे दे रही हूँ? मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको किससे दे रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ माय PPT, है ना, सॉफ्टवेयर। मैंने अभी आपको क्या कहा? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा 3 पार्ट से मिलके बनता है, ET1, ET2, ET3। सो ET1 टॉक्स अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट, ET1 टॉक्स अबाउट द, बोलिए, Hardware component. एंड जो ET2 है, दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दैट टॉक्स अबाउट द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ओके, So ma'am, CD will come under hardware और hardware में ही आएगी ना when we use CD? मैंने आपको क्या बोला? अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो आपने आंसर किया, आप बोल रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैन लिसन टू मी। Yes, हेलो ma'am. स्टूडेंट्स, ma'am. गिव मी अ मिनट। हाँ, मेरा ना वो शायद डोरबेल बज रहा है, कोई है तो जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी, हाँ, 1 मिनट ओनली। वेट फॉर 2 मिनट्स, ओके बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, Okay, ma'am. वो ना सिलेंडर वाला आया है भैया, तो वो रख रहा है, ठीक है, सॉरी, बिकॉज नोबडी इज देयर ना। भैया हो गया? Yes, I'm back. Okay, so I will tell you okay, what do you mean by ET1, ET2 in detail. Okay, so all of you are there? Students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what I have told Yes, you ma'am. that ET connotes 3 meaning: ET1, ET2, ET3. Okay, now you should know कि ET means we are talking about educational technology. So now ET1 refers to the hardware approach. ये अभी मैंने आपको explain किया. Okay, so you can read it. Refers to the applications of physical science and engineering technology for instructional purpose. और नेक्स्ट आपका क्या है? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मींस आप जो भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर इन एजुकेशन यूज। यस, एनीबॉडी इज वेटिंग इन लॉबी? हेलो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हाँ, आई एम डाउनलोडिंग योर अटेंडेंस, भूल जाती हूँ मैं फिर।
Okay. So ET1 talks about what? Hardware. बोलिए, ET1 talks about what? Hardware approach, है ना? Hardware. जैसे मुझे किसने एग्जाम्पल दिया था? CD वाला मरियम ने। हाँ ठीक है मरियम। तो जो ET1 में आपका जो एग्जाम्पल है वो जितने भी आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं एजुकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच जो हम यूज करते हैं वो किस में आता है? हमारा ET1 में। क्लियर? और आपका जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है हार्डवेयर अप्रोच। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्डवेयर अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज कंसर्न विद द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जो भी आपके हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज लैब्स हैं, प्रोजेक्टेड मीडियाज जितने हैं, आपके नॉन प्रोजेक्टेड भी होते हैं, प्रोजेक्टेड भी होते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंक्लूड्स टेंजिबल एस्पेक्ट, मतलब वो चीजें जिनको आप यू कैन से ना कि आप फिजिकली सेंस में उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट कम्स अंडर हार्डवेयर अप्रोच। वो किसके अंडर आते हैं? हार्डवेयर अप्रोच के। तो ये ET1 है हमारा जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वो ET1, ET2 और ET3 को रखता है, 3 चीजें, और ET1 में हमारा आता है हार्डवेयर अप्रोच। गॉट माय पॉइंट? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now our ET2 is what? सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच, आपको सॉफ्टवेयर पता है, अभी मैं भी आपके पास प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, इजंट इट? सो और सिर्फ यही नहीं, हम इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करते हैं, अगर आप कभी भी किसी को कोई चीज पढ़ा रहे हो तो यू फॉलो द साइकोलॉजी प्रिंसिपल, यस और नो? हम हमेशा कैसे पढ़ाते हैं? वी गो फ्रॉम इजी टू हार्ड, नोन टू अननोन, यस यस है ना? तो हमारी हाँ, तो हमारी जो टीचिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं अपने पढ़ाने के लिए, सो दैट कम्स अंडर व्हाट? सॉफ्टवेयर अप्रोच। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूजर्स ऑफ टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो किसके अंदर आती है? आपकी E2 के अंदर। सारे जितने भी सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं, आप कौन सी टीचिंग, कौन से मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर टीचिंग, दैट ऑल कम्स अंडर टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दैट इज E2। नाउ दैट थिंग इज आई हैव रिटन कि टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बोला था कि जो हमारा हार्डवेयर अप्रोच है दैट इज द टैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, और ये हमारा क्या है? इनटैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, हम जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, दैट आर व्हाट? दैट वी कांट टच, इजंट इट? मेन चीज आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जब हम डिफरेंस बताते हैं ना, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो हम यही पॉइंट रखते हैं कि हार्डवेयर मीन्स व्हाट? टैंजिबल, and software means intangible aspect. Got my point? Students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, and then what we have next, that is educational technology ET3. इसको हम बोलते हैं एक system approach. You know what is the meaning of system? कौन बताएगा? System मतलब क्या समझते हैं आप? चलिए जल्दी। It is a group of different hardware and software. सिस्टम मतलब जब हमारा एक पूरा एक इनपुट आता है, उसकी प्रोसेसिंग चलती है, उसका आउटपुट होता है, उसका रिजल्ट बैक आता है, फीडबैक आता है, एक हम सिस्टम में वर्क करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो जो सिस्टम अप्रोच होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारा ET3 है वो क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन को हम जब दोनों को मिलाते हैं, सो दैट बिकम्स अ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इज अ, आप अगर सिस्टम अप्रोच पढ़ना चाहे तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यू शुड नो अबाउट। कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करते हैं? वी गिव इनपुट, हम इनपुट देते हैं। यस, यू नो द मीनिंग ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। Yes, ma'am. अगर हम सिंपल से बात करें
कंप्यूटर में मैं अगर आपको बिकॉज यू हैव ऑल दिस इन योर यूनिट 2 ऑल्सो, जब आप पढ़ेंगे ना कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच जो है हमारा उसी पे वर्क करता है। मैं आपको जस्ट एक जनरल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय इनपुट। जैसे सपोज इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप एंड यू आर राइटिंग योर नेम, तो व्हाट यू आर गिविंग, आप क्या कर रहे हो? इनपुट दे रहा है। Input. People are waiting in lobby. Just कमेंट दे रहे हैं। wait बेटा एक मिनट। कृष्णा इज वेटिंग इन लॉबी। अब मेरा वापस से वो शेयरिंग बंद हो गया। कृष्णा यू हैव जॉइन? हेलो। यस मैम। हाँ वो सॉरी मैम, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं हाँ, वो बार मेरे इसमें भी प्रॉब्लम है, और पता है वो अब वो शेयरिंग भी बंद हो गया स्क्रीन। ओके डोंट वरी, आई विल डू इट अगेन, कोई बात। थैंक यू। इट्स ओके बेटा, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट ना बेटा, ऑल ऑफ यू कैन सी? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. मैं आपको एग्जाम्पल क्या दे रही थी कि सपोज यू आर टाइपिंग योर नेम, आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, किसी में भी आप टाइप कर रहे हो योर नेम, तो व्हाट यू आर गिविंग, आप क्या दे रहे हो अपने लैपटॉप को? यू आर इनपुटिंग समथिंग, है ना? तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? इनपुट की। क्या प्रोसेस हुई? इनपुट। इनपुट, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जैसे ही आप अपना नेम लिखते हो तो यू कैन सी योर नेम, आप अपने स्क्रीन में नेम दिखता है आपको। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, आई एम राइटिंग माई नेम, so what happen after that? उसके बाद क्या होगा? यू कैन सी योर नेम ऑन योर स्क्रीन। यस यस मैम। अब आपने अपना नेम देखा, इनपुट, लेकिन प्रोसेसिंग पार्ट आपने नहीं देखी। यू हैव सीन द प्रोसेसिंग पार्ट। आप जो भी टाइप करते हो ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी सिग्नल्स, बिकॉज कंप्यूटर को कोई इंग्लिश नहीं आती है कि ए बी सी डी क्या होता है। एवरीथिंग वॉट एवर यू राइट ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी सिग्नल्स। तो वो उसकी क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई इनसाइड। और जो आपने स्क्रीन में अपना नेम देखा, दैट इज व्हाट? दैट इज द आउटपुट। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच का जो यहाँ पर ET3 है, दैट सिस्टम अप्रोच जो है वो दोनों हमारी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को मिला के जो वर्क करता है, दैट कम्स अंडर ET3। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू ऑल व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? हु विल डिफाइन? चलो in your own words. Now I don't want कि that you should read all these definition. अगर आपको अपने own words में educational technology लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? Yes. Ma'am, the technologies which we use to obtain or achieve the objectives of education. Yeah. वेरी गुड। और सिर्फ हम टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, हम कोई भी हम प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, क्योंकि अगर हम कोई अपना कुछ डेटा बनाते हैं तो हम वो देखते हैं ना कि वो कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं। तो वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक मैनेजमेंट हो, चाहे आपका फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, साइकोलॉजी हो, एनीथिंग, ठीक है, जिसको कि हम किस में ले रहे हैं? टू अचीव द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो वो किसके अंदर आएगा? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ आई हैव गिवन यू वन शॉर्ट फॉर्म दैट मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ सिस्टम ऑफ 5 M's। हम उसमें मशीन्स की भी बात कर रहे हैं, मटेरियल की भी बात कर रहे हैं, मैन की भी बात कर रहे हैं, मीडिया मेथड्स तो है ही है, ठीक है। तो ऑल दिस वर्क टुगेदर टू व्हाट? टू फुलफिलमेंट ऑफ द educational objectives. So I think it's clear to all. Educational technology क्या होता है ये समझ में आया students? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Now if we will talk कि हम educational technology क्यों यूज कर रहे हैं, अभी तक इतनी देर से मैंने आपको समझाया, तो अब आप you can tell me what is the significance of using educational technology? Yes,
Who will tell me what is the significance of using educational technology? चलिए बताइए क्या सिग्निफिकेंस है? Ma'am, can Ma'am, we it say is that it is important. had to modify our teaching Please, learning beta, first process? tell your name and then give answer. Okay, so I will get to know. Yes. Ma'am, Halisa. Ma'am, can we Halisa. say that it helps to modify our teaching learning process? Yeah, very good. Yeah, it's true. We are modifying it. And any other point? ठीक Ma'am, है, and good. also to enhance it Good. with All the help of certain media. very good. Yes. number of sources are extended मतलब ज्यादा होते हैं as compared to N number of resources are available, है ना? अगर आप आज के point में देखो, if you want to teach some topic to your student, so you have n number of resources available in internet through where you can get the information. Yes, तो information gather करना, knowledge gather करना becomes a very easy task using what? Using all these technology. Yeah, I'm right. Yes, ma'am. Ma'am, it makes yes ma'am it creative. The learning, it makes it creative at the क्रिएटिव same वेरी time. गुड इट मेक्स इट क्रिएटिव इट मेक्स इंटरेस्टिंग जो हमारा सिंपल अगर आप देखें पहले के टाइम में जो हमारा क्लासरूम टीचिंग होता था वो बहुत मोनोटोनस होता था कि टीचर ने बस लेक्चर दिया यू कांट सी एनीथिंग जैसे जो प्रेजेंटेशन पॉइंट हमारे टीचिंग में ऐड हुआ है टीचिंग एड में सो ऑल दीज आर व्हाट दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ व्हाट plus point of our teaching learning process with the help of educational technology. Got my point? Yes, ma'am. So now we will study about some significance of educational technology, creation of multimedia learning environment in the classroom. Yes, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम वो use कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? You people are seeing my PPT. You can listen to me. You can see my PPT. You can see me also. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I'm getting response from 2-3 students. What about others? मुझे कभी भी एक साथ पूरी क्लास में कुछ थोड़ी बहुत ऐसी की आवाजें आती हैं. आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. देखिए सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें अभी हमारे पास तो लाइव एग्जाम्पल चल रहा है. Whatever I am explaining to you, you can feel it yourself. Yes or no? You can feel it yourself. हम अभी बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम इससे हम मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट you can see me, you can see my PPT also, and I have given you the link also. That link is what? That is the resource which I have provided you. So all these things जो हम अभी पढ़ रहे हैं हम उसको practically you can feel it, you are doing that. अगर हम कहें तो it involvements of maximum senses. आपने वो सुना है ना कि 10% हमें याद होता है सुनकर, 20% होता है देखकर, and then 30% by seeing and by listening, है ना? तो यही चीज with the help of this technology we are using our maximum senses. अभी आप take your example, you people are watching my PPT, you are watching me and you can listen to me. तो ये क्या है हमारे maximum senses को involve करता है teaching learning process में. Okay? And it utilizes maximum of teaching. पता है आपको क्या होता है maximum of teaching? हम क्या करते हैं कभी भी कोई टॉपिक टीच करते हैं तो we always start from known to unknown. हम known से unknown की तरफ जाते हैं. We move from easy to hard. Yes. So we use it. Reduce verbalism and monotonous teaching. वो तो आपको बता ही दिया कि अब सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं है. नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज. यू कैन अगर सपोज इफ यू आर टीचिंग साइंस टू योर चिल्ड्रन तो आप उसको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इवन दो यू कैन शो इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब्स एंड मेनी अदर साइंस एजुकेशनल चैनल्स आर ऑल्सो देयर. तो इस तरह से हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? अटेंशन कंपेलर्स. ऑब्वियस सी बात है अगर आपको हम कोई चीज दिखाएंगे सिर्फ वर्बली हम बताएंगे तो आपका इतना अटेंशन गेन नहीं कर पाएंगे. बट this with the help of this multimedia features, with the help of this technologies, it helpful to increase the attention
of pupil. Okay, and number of adequate resources are available also. So that's why it helps to make our learning better and also our retention also. And one most important thing you can say that individual differences को भी इसमें जो students के individual differences होते हैं, you know what is the meaning of individual differences? Yes, who will tell me? Point of view are different that way. Pardon, beta, loudly. Tell your Difference in name point first. of view. Kalyani ma'am. Okay, Kalyani. हाँ बोलिए बेटा. Difference in their point of view regarding one topic. ठीक है, ये भी सही है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपके थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, कोई स्टूडेंट्स की जो अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है दैट आर डिफरेंट. आप कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से सुन के बहुत अच्छा काम कर सकता है. कई स्टूडेंट में ऐसा होता है कि अगर वो उस चीज को विजुअलाइज देखे तो ज्यादा अच्छा लर्निंग हो सकती है. कई की दोनों के साथ लर्निंग हो सकती है. किसी को एक टॉपिक लर्न करने के लिए 1 आवर लगता है, किसी को वही सेम टॉपिक करने के लिए 10 मिनट्स लगते हो, है ना. तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे अभी आपके पास नोट्स हैं, nowadays we have all the facility, we are providing you all the PDF PPT. तो किसी को अगर कोई टॉपिक या कोई लाइन नहीं समझ में आया है तो वो अपना क्लास ओवर होने के बाद वो मैटर देख के फिर से उसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकता है. यस, नॉट ओनली द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमारे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं कि जो हमारे रूरल एरिया होते हैं वहां तक भी हमारी एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज हम बहुत इजीली उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं. सो यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट? यस मैम. Yes ma'am. So I think this thing is clear to all. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो आज हमने पढ़ा है वो सबको क्लियर है. यस? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. अभी तो आप जाएंगे when you will go to, if you will do pursue MEd, then we have a full paper of educational technology. तो उसमें आपको बहुत डेप्थ में you will read each and everything, single part in detail. But अभी आपका जो है कि you should know the concept कि what do you mean by educational technology. So I think that is clear to all. Yes? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we will have class on, today is 31st now, so we will have class on Saturday. Yes. So we will start new topic. So what is your homework? Just try to make notes on all these topics. जो मैंने अभी आपको कराया ना, हमने main topic क्या किया है कि ICT, what is ICT, what is the concept of ICT, IT, CT, ET, और आपने वो वाला चैप्टर तो कर लिया ना, CAI, CBI, कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन. जब हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं तो आपके जो यूनिट 1 में है उसमें कंप्यूटर एजुकेशन से भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ICT, कंप्यूटर एजुकेशन, ET. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. व्हाट यू पीपल हैव टू डू कि आपने आज जो भी पढ़ा है ना उसको एटलीस्ट एक पेज में कुछ भी लिखो जो आपको समझ में आया कि टुडे वी हैव डन अबाउट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अब ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड कि आपको क्या आज पूरे लेक्चर में क्या समझ में आया. तो आप उसको अपने एक नोटपैड में लिखिए कि आज आपने पूरा लेक्चर में आपको ET के बारे में क्या समझ में आया. तो अपने ओन वर्ड्स में अगर आप उसको डिफाइन करेंगे ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाए. ओके, सो व्हाट्स योर होमवर्क? आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, और आज आपने जो भी पढ़ा है उसको अगर आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसको एक बार रिटर्न में लिख के देखेंगे कि हाँ हमने आज इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ा. ओके, ठीक है? जी मैम. Yes ma'am. Yes ma'am. चलो लंच करना होगा सबको. लंच नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया मैम. मैम ने भी नहीं किया. चलो अब आप लोग जाओ, लंच करो, अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, और बाहर बिल्कुल कम, बहुत अर्जेंट हो तभी जाओ. ठीक है? एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके बेटा? Yes, Okay ma'am. ma'am. Thank you ma'am. Thank you Thank you, ma'am. ma'am. Bye. Okay, thank you. Bye bye. Take care. Bye bye ma'am. Bye, Take ma'am. care. Bye, ma'am.
Bye. Now you can leave meeting, all of you.